In this class, today I will teach you something very unique and it will be really very easy for you. So please stay tuned in the class. So first of all, imagine the earth is a huge round clock and it rotates slowly, very slowly. And because of this rotation, time changes from place to place. Imagine yourself like this, okay? So today I will tell you basically this class about how longitude controls the time using a simple story I will tell you, okay? So you do not need to memorize everything, okay? So the if you understand the concept properly, you do not need to go very uh, like tensed mode how to memorize these things. This is very tricky, geography is very tricky. No, it's not, it's very easy. See, first of all, I am going to give you a little bit recap about the previous classes. First of all, if you do not, you have not watched previous classes yet, you go to my playlist section, check out part 1 and part 2, then come to this video, okay? So, in the previous classes, I already taught you latitude, how latitude tells how far north or south we are from the equator, and now comes to the longitude section, and it tells how far east or west we are from the prime meridian. Okay, totally understood. Now, prime meridian equals to 0 degree. Okay, it is a reference point. Okay, and when I write E, it means east, and W for west. It is very simple, you know that. So longitude is measured from 0 degree to 180 degree east or west. 0 degree to east 180 degree, 0 degree to west 180 degree. Okay. Now see, these are the section I will define you. So give me some time first, then I will define you everything very nicely. So don't worry for that. Okay. Now you already know why longitude affect us or affect the time. Earth rotates from west to east. Basically, see. Let me teach you a little bit. This is the earth. Okay. This is north, this one is south, this one is east, and this one is west. Okay. And earth rotate like this. West to east, not east to east. Okay, and one full rotation, sorry for that, one full rotation I am saying on its axis, rotation in 24 hours. These are the very basic things, you already know that. Okay, one full सर्कल लाइक 24 आवर्स में जब ये रोटेट करता है तो कितने डिग्री से रोटेट करता है? 360 डिग्री. तो दिस वन इज एंगल एंड दिस वन इज टाइम. I don't think there is any confusion about these two things. Okay. Now, basic formula I will let you know how to calculate the time, how to calculate the if I am giving you longitude, how you can extract the time from that. So I will give you formula, but first of all try to clear your basic concepts. I am really emphasizing more and more on concepts, because if I give you notes, if I teach you anything, and if it will be rote learning, you will forget one or two after 1 or 2 days or 1 month. But if your concept will be clear, nothing will be go away from your mind. Okay. Now, so 360 degree equals to 24 hours. 24 घंटे में कितने डिग्री से रोटेट कर रहा है? 360 डिग्री से रोटेट कर रहा है. तो अगर मैं इसका 1 आवर का निकालूं, 1 आवर में कितना रोटेट करेगा, तो इफ आई डिवाइड 360 बाय 24 तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा आंसर हमारा. मतलब 1 घंटे में अर्थ जो है एंगल से 15 डिग्री एंगल से रोटेट करता है.
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगी। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हुआ? तो इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से कि 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर। ठीक है, 1 आवर, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर बाय 15। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 बाय 50। 60 मिनट आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पे 60 जो है वो मिनट है, वहाँ पे ये आवर था, यहाँ पे ये मिनट है। ठीक है, गिव मी अ सेकंड, दिस पेन इज नॉट वर्किंग। दिस इज मिनट्स, दिस इज आवर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना आया? तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हमारा कितना निकला? 4 मिनट। इसका मतलब ये हुआ 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है 1 डिग्री रोटेट करने में। ठीक है, एंड तो सो वी कैन से every minute, every 1 degree, I would say, not minute, every 1 degree of latitude every 1 degree of I'm very sorry, this is my bad, longitude equals to 4 minutes of difference time. Four minutes of time difference. 4 minutes of time difference. समझ में आ रहा है? ठीक है, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक जगह को रेफरेंस लिया, दैट इज ग्रीनविच। अभी आप बुक्स में जब जाओगे, ये सारी जगहों पे, जब ये सारी चीज़ों जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ये सारा सेक्शन में कवर कर रही हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल give your own read first, okay? Then come to the class and you will understand everything कि कैसे डिग्री से टाइम को डिसाइड किया जा रहा है। क्लियर? एक मिनट, give me a second. This app is not working. Okay. Okay, these things understand you properly. Try to understand, okay? So prime meridian करके आपके बुक में एक वर्ड है, prime meridian. मेरिडियन। ठीक है, तो जितने भी साइंटिस्ट ने एक जगह है जिसका नाम प्राइम मेरिडियन लाइन रखा गया है, जो passes through where these questions will ask you, they will ask you an example, passes through where? Greenwich. And where this place is? This place is in London. Clear? वहाँ से रेफरेंस पॉइंट लिया गया, तो ग्रीनविच जो है वो लंदन का एक जगह है। ठीक है, अब ये जो प्लेस है, ये रेफरेंस पॉइंट लिया गया दुनिया के लिए। ठीक है, डिसाइड्स वाज रेफरेंस पॉइंट बेसिकली। ठीक है, सो दिस टाइम इज कॉल्ड ग्रीन मीन टाइम। ग्रीनविच के टाइम को बोलते हैं GMT। GMT फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रीनविच मीन टाइम। I'm just writing Greenwich, please write it down. Greenwich mean time. This is the full form. ठीक है,
अब एक्चुअल इक्वेशन में बताती हूँ, ठीक है। जब भी कोई भी कैलकुलेट करना पड़े, इफ़ यू हैव ऑलरेडी लॉन्गिट्यूड विथ यू एंड हाउ टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ दैट सिटी एंड दैट स्टेट और कंट्री, क्योंकि हर कंट्री में किसी किसी कंट्री में एक ही टाइम जोन होता है, किसी किसी में मल्टीपल टाइम जोन होता है, ठीक है। जैसे यूएस में मल्टीपल टाइम जोन है, रशिया में मल्टीपल टाइम जोन है। तो अगर आपको लॉन्गिट्यूड पता है तो आप उसे कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो भी टाइम आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, लॉन्गिट्यूड आप ग्रीनविच से उसका टाइम निकाल सकते हो। सपोज करो आपको ग्रीनविच में जो भी टाइम दिया हुआ है उस जगह से, पहले तो आपको ग्रीनविच में जो टाइम दिया गया उस जगह से आपके कंट्री का टाइम का डिफरेंस कितना है वो कैसे निकालोगे। जैसे इंडिया जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है इसका लॉन्गिट्यूड। ये भी मैं बताऊंगी कैसे इसको क्या है। इसने लॉन्गिट्यूड को टाइम जोन इंडिया में माना गया, इस लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है, इंडिया का टाइम माना गया। अब टाइम, ये जो हमारा जो टाइम है, जो इंडियन टाइम है, वो ग्रीनविच से कितना आगे है, ये कैसे निकालेंगे। तो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, प्लीज राइट इट डाउन दिस फॉर्मूला। टाइम डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। टाइम डिफरेंस इक्वल्स टू व्हाट, longitude, whatever longitude is given, multiply 4 मिनट। 4 मिनट से मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 1 डिग्री अर्थ को रोटेट करने में टोटल 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो अगर इतना लॉन्गिट्यूड, इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड उसको घूमना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिनट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब सीधा इसका समझते हैं, ठीक है। अब इसका हमारे पास है 82.5 अगर है हमारा इंडिया का, जिसको मैंने 5 क्यों लिखा है वो भी समझ में आएगा। 30/60, तो ये 30/60 जो है हमारा, ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, व्हाट आई गेट, 0, 9, not 9, sorry, 0, फिर 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने, तो ये 330 क्या हो गया, मिनट हो गया। अब 330 मिनट को अगर मुझे आवर में चेंज करना होगा तो मैं क्या करूँगी, 330 को मैं डिवाइड करूँगी 60 से। जब आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे, यू गॉट 5.5। इट मीन्स 5 आवर्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 आवर्स 30 मिनट अहेड है। कहाँ से, ग्रीनविच, जीएमटी का जो भी टाइम होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं, सो इंडिया इज अबाउट 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich. Any doubt? कोई डाउट नहीं है। अब आपके बुक में लिखा हुआ है दिल्ली का, तो दिल्ली का don't know why it is not scrolling. No, नीचे है शायद, give me a second, स्क्रॉल ऊपर हो गया है। यहाँ पे दिल्ली का लैटिट्यूड दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लॉन्गिट्यूड के थ्रू निकाल सकते हैं। 77 को डिग्री को अगर आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यू गेट, ठीक है, 308 मिनट यू विल गेट। अब इसको जब आप आवर में बदलिएगा, इफ यू वांट टू चेंज दिस इनटू द आवर, व्हाट यू गेट 5 hours 8 मिनट। तो दिल्ली जो है विच इज
about 5 hours 8 minutes ahead of Greenwich. कोई प्रॉब्लम? इंडिया को ऑफिशियली हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट रखते हैं, उसी से पूरा इंडिया का टाइम जो डिसाइड होता है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। समझ में आ रहा है? कोई भी कंफ्यूजन को रोकने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको फिर ये भी बता देती हूँ बेसिकली कि इंडिया का जो टाइम जोन है, बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड, आई वुड से स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा है, ये इसको चूज किया गया कितना डिग्री? इंडिया चूज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब ये किसी को अगर जानना है कि 82 डिग्री को 30 मिनट ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगी। ईस्ट लॉन्गिट्यूड है इंडिया का, ये चूज किया गया है, डिसाइड किया गया, और पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन फॉलो होता है। क्लियर? सो अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि जितना भी जीएमटी में टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम है, उसके टाइम में हमारा 5 आवर और 30 मिनट्स जो है वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना तक समझ में आया? तो अगर आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऐसे आएंगे कि सपोज यहाँ पे अगर जीएमटी में अगर 12 हो रहा है ये पीएम, तो इंडिया का टाइम जोन कितना आएगा? इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा? तो इसमें आप 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 17:30 PM हो जाएगा, विच इज ऐसे कितना हो जाएगा? 5:30 PM, मतलब आई मीन इवनिंग का टाइम हो रहा है हमारे कंट्री में। ठीक है, दूसरी तरफ ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अगर अर्थ ईस्ट की तरफ आप अगर ग्रीनविच से जाइएगा तो टाइम विल बी एडेड, और वेस्ट की तरफ जाइएगा तो टाइम विल बी सब्ट्रैक्टेड, रिड्यूस। ओके, डन? इतना तक समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके, सो मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो। मैंने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट मी नो, फिर हम लोग आसाम का केस पढ़ेंगे, फिर टाइम जोन और भी पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक घंटे में ये भी मैं बता ही देती हूँ, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। ठीक है, ठीक है, तो 24 टाइम जोन्स है बिकॉज 24 आवर्स अगर मैं बोलूँ मल्टीप्लाई 15 डिग्री, इट बिकम्स 360। तो अगर एक घंटे में 15 डिग्री रोटेट हो रहा है अर्थ, तो 24 आवर्स में ऑब्वियसली ये 360 रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, जो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे लाइक यूएसए, रसिया, इस बड़े बड़े कंट्रीज में काफ़ी टाइम जोन्स फॉलो हो जाता है, हर स्टेट वाइज होता है, डिपेंड करता है कितने लॉन्गिट्यूड पे वो कर रहे हैं डिस्कस। बट इंडिया जैसे कंट्री में एक ही टाइम जोन फॉलो किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल भी, हाँ मैंने ये भी बता दिया है, इफ़ यू गो ईस्ट वर्ड, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इफ़ यू गो ईस्ट वर्ड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ग्रीनविच, तो डे जो है वो सब्सट्रैक्ट होगा हमेशा, सब्ट्रैक्ट अ डे पीछे आ जाएगा, और वेस्ट वर्ड अगर आप जाते हो तो ऐड अ डे। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस और ये जो टाइम ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? लाइक इफ यू क्रॉस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड द डेट चेंजेस। बेसिकली आप 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जब चेंज करते हैं तो डेट चेंज होगा, या तो डेट ऐड हो जाएगा, आगे वाला दिन आ जाएगा, या पीछे वाला ही दिन रहेगा। ठीक है, तो रूल सेज इफ यू गो ईस्टवर्ड डे विल बी सब्सट्रैक्टेड, इफ यू गो वेस्टवर्ड डे विल बी एडेड।
इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो व्हाट आर द थिंग्स वी कवर्ड इन दिस वीडियो, लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड जब हम लोग ऐड करते हैं इट बिकम्स कोऑर्डिनेट्स, और इस दोनों के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके हम लोग टाइम जोन डिसाइड करते हैं बेसिकली। सो लैटिट्यूड क्या कहता है कि आप इक्वेटर से नॉर्थ कितना है और इक्वेटर से आप साउथ कितने पे हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा 1 मिनट इक्वल्स टू 4 फॉर 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स, मतलब 1 डिग्री रोटेट करने में, 1 डिग्री एंगल को रोटेट करने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं। 15 डिग्री रोटेट करने में ऑब्वियसली 1 घंटे लगेंगे, तो फिर ऑब्वियसली 24 घंटे में 360 डिग्री अर्थ रोटेट करेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने ऐड किया है, आप एक बार ग्लोब पे जाके देखिए, ग्लोब को खुद से जाके देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं कि लोकल टाइम जो है टोक्यो का, पेरिस का और मुंबई का कितना ले सकते हैं। तो you can check their longitude, then you can calculate. I already gave you the formula how to calculate. Whatever longitude with you have to just multiply that longitude with the 4, and whatever answer will come out, you have to divide that by 60, because you have to change into minute into the hour, okay। then you can tell me उसका रियल टाइम जोन क्या है। क्लियर, डन। So yeah, meet me in the next video. I define everything, I think. Let me check once. प्लीज इस फोटो सबको देख के डरना नहीं है, दीज आर वेरी सिंपल थिंग, दे आर जस्ट टीचिंग यू। आप ये वाला जो ग्रीनविच मैंने पढ़ा दिया है, ये वाला पिक्चर आप देख लो, ग्रीनविच जहाँ पे है, ग्रीनविच को 0 रेफरेंस पॉइंट, ये भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। ग्रीनविच को 0 रेफरेंस पॉइंट माना गया है। इस साइड आप टाइम जोन ऐड हो रहा है, इस साइड माइनस हो रहा है। कंट्री को फ्लैट करके, सॉरी वो अर्थ को फ्लैट करके आप देखिए, इट्स नॉट लाइक अ ग्लोब, इसको फ्लैट करके देखिए, तब आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये दिस चैप्टर is done, I think. So in the next video I will start to new chapter of history or maths. Let me know which chapter will support you in your exam, because exam is approaching and it is around the corner. So yeah, thank you for watching.